आप सबने कई बार देखा होगा कि हमेशा जब भी हम किसी सिचुएशन को फेस करते हैं, हर एक इंसान की एक अलग टेक्निक होती है, एक अलग तरीका होता है उस चैलेंज को, उस स्ट्रेस को या उन इमोशंस को हैंडल करने का, उसे फेस करने का। इवन बच्चों में भी कई बार नजर आता है, कुछ बच्चे होते हैं वो हमेशा हैप्पी होते हैं, कुछ होते हैं वो बहुत क्वाइट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कई बार इरिटेबल नजर आते हैं या उन्हें समझ नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। फॉर्चुनेटली देयर आर वेज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड ईच एंड एवरी पर्सन्स माइंड। हर एक इंसान की एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी होती है जो कई बार हिडन होती है, हमें पता भी नहीं होता है कि ये इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एंड दीज टेक्निक्स एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट, एंड इन मेनी केसेस देयर आर वेज एक्चुअली हेल्प देम ग्रो पॉजिटिवली, overcome their challenges and come out as a positive and a joyous personality, including adults and kids. So in my podcast today I have Nirav Pakai, who is a specialist in graphology. Nirav is going to speak about a branch of behavioral and psychological science that is almost 3000 years old to identify and correct health, wealth and relationship areas of an individual based on their handwriting and signature. Hey, this is Nirav Pakai from Life is Beautiful and like to share something with you. If God is everywhere, then what is the need to visit the church, mosque or temple? See, it's very simple that if air is everywhere, then why we need to sit under the fan to feel and experience the air? Because fan is such an instrument which actually collects all the segregated, scattered air and diverts and focus to us. And then we can experience the actual air, we can enjoy the air. Similarly, if you say energy, solar energy is everywhere, then why every paper is not burning? Because the energy is segregated, energy is scattered. So with the help of convex lens, all the energy is collected, diverted on the paper, and with the help of convex lens, that paper starts burning. So my dear friends, God is everywhere. Actually it is everywhere, but in the form of scattered energy. So with the help of this place called as temple, church, mosque or any of your religious place, this scattered energy is diverted and focused into you. So my dear friends, do visit temple, church or mosque or whichever religion you belong to, and it's not be positive, feel positive and see to that the energy flows into it. So this is Nirav Pakai signing off. Watch my next video. Thank you. How are you, Nirav? I'm good, Namita ji. Thank you so much. Thank you so much. I hope कि आपके घर में, आपकी family में everyone is safe, healthy and fine. Absolutely, all are safe, all are doing good, and God is really kind to us, Namita ji. So thanks a lot, Nirav, for accepting my invite to come over here on my YouTube podcast and share your thoughts, your expert advice and tips with my world of audience. I welcome you over here. Absolutely. So Nirav, आपके बारे में मैंने एक brief background already अपने viewers को दे दिया है. I want you also to speak about yourself, childhood के बारे में, आपकी family के बारे में, your brief background, what you're doing currently, your journey till now. Just to give a light flavor to my audience. So, hello everyone, and again, I am thankful to Namita ji for this wonderful opportunity. Just to begin with myself, see, let me tell you a very simple thing that I was not a great student. I was actually, I can use the word, I was a dumb student. And when I was a student, even teachers were not that much supportive. मतलब ऐसा होता था कि even I used to ask some doubt, तो teachers बोलते थे भाई तुम्हें क्या समझेगा, तुम्हें doubt से क्या करो. Oh. So this is how the thing started, and it was every time it was demotivated. And in childhood even I was much obese. Okay, that much not handsome or say, तो इतना attention नहीं मिल पाया सबसे. I was not that much scholar also, no friends and nothing. So likewise, journey started, and somewhere I can say I gave time to myself. And when I started giving time to myself, I started investing in myself about my learning something new, always learning something new. So that is how I entered. Qualification wise, I'm masters into micro and vaccines, and then I became a teacher. So to be very honest,
in the start, I was not a good teacher. I was not a good teacher because not teaching wise, but I was a very strict teacher. Hot, Okay. you can say short tempered teacher. So अगर बच्चा ध्यान नहीं देता है, if child is not paying attention, if child is not doing homework, I used to get angry. And I talk about 2006 and 7. Sometimes ऐसा मार भी पड़ जाता था बच्चों को. That's the reason I was not a good teacher. But somewhere I came to know about something called as graphology, handwriting analysis, which actually changed my life 180 degree. Because after learning this handwriting analysis, I came to know that what do opposite people think. I started analyzing their problems. And I can say when I started addressing my students' problems, the students started sharing their time with me, sharing their problems with me. And once we have a good friendship, obviously they started paying attention in my class, they started doing homework, and they started scoring good marks. So obviously, Wonderful. now gradually I became a good teacher. So from 2009, I can say I had become a wonderful journey, and since last 5 years, I got a best teacher award from my school also where I was working. And I believe simple thing that everyone has a problem. Everyone has a problem. Everyone struggle in life. But if we try to understand each other, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर हम लोग आगे चलते हैं ना, then we can obviously do well and better in our life. So this is what I think, and this is how I came into this profession of handwriting analysis, from teaching into handwriting analysis, where I started understanding problems, and then people actually started developing faith in me. And because of faith, एक responsibility आ गया. Yes, अगर सामने वाला person is sharing some problem with me, so it is my responsibility to help them, to solve them, at least to support them. So I am enjoying my life a lot. I am very, very happy. I am very grateful to universe and God that this particular profession I am into, and I am helping people through my knowledge and everything. So that's it, Namita ji, from my side. In a short, I'm enjoying my life a lot because I meet until now I have taught around more than 50,000 students. I have done around 7,800 analysis. So I'm really happy with all my career and experience. What Yes, an Namita. inspiring story, Nirav. I mean, I really have to appreciate कि आपकी जो जर्नी रही, there has been such a remarkable transformation in you. I mean, from a child, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई hurdles और challenges आते थे, but eventually you by yourself took control of your life, took control of your own mind, and decided to discipline yourself and go ahead and be successful. I mean, truly remarkable and outstanding, I would say, Nirav. Yes, thank you so much, Namita ji. Thank you so तो much. मेरा अभी आपके जो अभी आपने ग्राफोलॉजी के बारे में जो बताया, सो लाइक क्या आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं उसके लिए? Yes, I learned this graphology handwriting analysis in 2008. Then I started practicing on my students only. I was not doing as a profession. And from 2013, I started analyzing. And once I got a good confidence, from 2015, I started coaching handwriting analysis also. So yes, currently I have more than 600 students whom I have taught, whom I have coached, and as my company is ISO certified, so whoever does coaching from me, they get an ISO certified graphologist certificate. So I do coach, Namita ji. That's really amazing, Nirav. So Nirav, आपको approximately कितना टाइम लगा, like जब आपने कोर्स स्टार्ट किया, how much time did you take to actually complete the course? हैंडराइटिंग एनालिसिस इज पूरा आपकी माइंड का एनालिसिस. ओके, तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर को बताते हो कि भाई मुझे बुखार है, मुझे थोड़ा लूज मोशन हो गया है, और डॉक्टर अपनी स्टडीज को जाके अपनी पूरी एनाटॉमी को समझ के हमें बताता है एक्चुअली हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्या है. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट हैंडराइटिंग, जब मैं हैंडराइटिंग की बात करता हूँ तो हम हैंडराइटिंग ये नहीं देखते कितना अच्छा है या कितना बुरा है, हम ये नहीं देखते. करेक्ट. हम ये देखते हैं कि हैंडराइटिंग ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसमें एंगल्स है, उसमें राउंड है, उसमें हर एक लेटर्स कैसे लिखे हुए हैं. तो आई कैन कनेक्ट, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा हैंडराइटिंग एनालिसिस कुछ मेडिकल स्टडी जैसा ही है. इट इज एब्सोल्युटली साइकोलॉजी से रिलेटेड है. तो इसमें ऐसा है कि मुझे ये पढ़ने के लिए 1.5 साल लगा था,
1.5 year. बट इसमें जैसे कि आपके पास मेडिकल में जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे उतने आप बेहतरीन डॉक्टर होंगे. एब्सोल्युटली. वैसे आप जितने ज्यादा सैंपल एनालिसिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा. मेरे केस में मैं क्यों लकी था, क्योंकि मैं टीचर था एंड स्कूल्स में, कोचिंग क्लासेस में, प्राइवेट ट्यूशंस में काफी जगह पढ़ाता था. तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब तकरीबन मॉर्निंग 7 से मैं मेरा डे स्टार्ट करता था. 7 से लेके 1 o'clock तक मैं स्कूल्स में रहता था. उसके बाद 3 o'clock के बाद कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट ट्यूशन. सो ऑलमोस्ट मॉर्निंग 7 से लेके नाइट 10 तक आई वॉज विद स्टूडेंट्स. So I had a number of students in my life, number of students. That's the reason मुझे इतना सारा एक्सपोजर मिला है, इतने सारे सैंपल मिले हैं एनालिसिस के लिए. That's the reason मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया. तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि आपके कॉन्फिडेंस की एनालिसिस के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. जैसे काफी लोग ऐसा है ग्राफोलॉजिस्ट जो इस पे प्रेडिक्शन भी करते हैं, बट इस पे प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है बिकॉज ग्राफोलॉजी आपका प्रेजेंट स्टेट बताता है. इट इज नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट स्टडिंग योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कुछ सर्दी जुकाम हुआ है और मैं आपको बोलूं चलो नमिता जी हम लोग बाहर घूमने लॉन्ग ड्राइव पे जाते. अरे क्या नहीं रहो, क्या बोल रहे हो यार, अभी मूड नहीं. सो सी योर थॉट इज समथिंग नेगेटिव. बट अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही वेल टू डू है और मैं आपको बोलूं चलो बाहर जाते हैं, अरे वाव नहीं रहो, चलो जाते हैं. सो सी योर थॉट प्रोसेस चेंजेस डेली, इवन hourly also. So it's all about experience and practice, Namita. वेरी करेक्टली पॉइंटेड नीरव. अभी जैसे कि आपने कहा कि जो ग्राफोलॉजी है, इट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ योर माइंड एंड इट कैन नॉट बी टेकन एज अ प्रेडिक्टिव एनालिसिस. तो इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे पास है, लेकिन वो अभी नहीं, हम आगे उसके ऊपर बात करेंगे. तो अब जैसे कि आपने कहा आपको 1 से 1.5 साल लगा टू वर्क एंड टू लर्न ग्राफोलॉजी. क्या इसमें कोई बेसिक क्वालिफिकेशंस लगता है टू एनरोल फॉर द कोर्स? There is no basic degree qualification. आपको ये जैसे कि ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग एनालिसिस इंग्लिश में है, तो आपको बेसिक इंग्लिश समझना जरूरी है. और अगर इंग्लिश आपका बहुत अच्छा भी नहीं है तो डिक्शनरी की मदद से भी आप काफी वर्ड्स का हेल्प ले सकते हैं. इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं. आई वुड से अगर आप नॉर्मल 10th पास हो और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं तो बहुत हो गए. इसके लिए आपको हाई फाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. तो नीरव, अभी यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज की जब बात आती है तो ग्राफोलॉजी करके और क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो सकती है? ओके, तो नमिता जी सबसे पहले एक छोटा सा जोक बहुत होता है जब भी मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको ग्राफोलॉजी सीखना है तो आप मेरे पास सीख सकते हैं. सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि नीरव हम इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं. तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें होती है कि अगर हम लोग एक अच्छा सा टाइम दे रहे हैं तो हम कितना कमा सकते हैं. बट पैसे के अलावा अगर आपको अपना करियर बनाना है, देयर आर मेनी स्ट्रीम्स जैसे कि हाउ ग्राफोलॉजी कैन बी बेनिफिशियल. सबसे पहले ये आपके करियर काउंसलिंग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. अगर आप साइकोलॉजी रिलेटेड हो, अगर आप करियर काउंसलर हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप स्कूल, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो तो आप बच्चों को गाइड कर सकते हो उनके हैंडराइटिंग के बेस पे कि वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेहतर होगी. क्या होता है नमिता जी, जैसे कि मान लो मेरी बड़ी बहन ने साइंस लिया, मेरा फ्रेंड कॉमर्स लेना चाहता है, इसलिए मैं साइंस या कॉमर्स लूं. आजकल के टीनेजर्स के बीच में जो करियर सिलेक्शन होता है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है. और अगर आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये देखता है पैसा ज्यादा कहाँ मिलेगा, इंजीनियरिंग में मिल रहा है, मेडिकल में मिल रहा है, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं. बट एज अ टीचर फ्रॉम लास्ट 16 years मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुश नहीं हो नमिता जी तो आप कितना भी पैसा कमाएंगे वो आपके लिए वो आपकी जरूरत पूरी कर ही नहीं पाएगा. इसलिए मैं बहुत समझता हूँ कि मान लो आप डॉक्टर हो और आप खुश नहीं है तो वो पैसा आपको मजा नहीं आएगा, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे. इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि जब मेरे पास कोई बच्चा आता है, चाइल्ड आता है, टीनेजर आता है करियर काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनका विजन सबसे पहले देखना चाहता हूँ और उनका विजन में डेवलप करवा पाता हूँ. बिकॉज अगर मैं उनको ये बोल पाऊँ कि बेटा आपको भले 90% आया है बट यू टेक आर्ट्स एंड आफ्टर आर्ट्स वो पर्सन में देखते कि वो लोग इतना बेहतरीन करते हैं कि दे आर वेरी वेरी हैप्पी. और 3 Idiots का आमिर खान का डायलॉग भी है कि अगर आप खुश है, अगर आप एक्चुअली आप नॉलेज को वैल्यू करते हैं तो सक्सेस जख मार के आपके पीछे आएगी. करेक्ट. सो इफ यू आर हैप्पी
डेफिनेटली नमिता जी, कि आप आर्ट्स हो, आप कॉमर्स में हो, आप साइंस में हो, मैं तो ये बोलूंगा अगर आप 10th फेल भी क्यों ना हो, आप खुश रह के अच्छा पैसा अपनी फैमिली को खुश रख ही पाएंगे. सो करियर Correct. काउंसलिंग में ये ग्राफोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से हेल्पफुल होता है. यू कैन बिकम अ वेरी गुड करियर काउंसलर थ्रू ग्राफोलॉजी. सेकेंडली इज रिक्रूटमेंट. लेट्स से यू आर अ बॉस, यू आर अ मैनेजर और यू आर अ एम्प्लॉयर. अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो काफी बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं दो कंपनियों में मैं कंसल्टेंट हूँ नमिता जी. तो ऐसा होता है ना कि मैं एक जो कंपनी है दुबई में, वो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है. तो ये इतना बड़ा कंपनी है जहाँ राइवल्स उनको उनके क्लाइंट, उनके कैंडिडेट कंपनी में भेजते ताकि उनका सीक्रेट चोरी किया जा सके, उनका ऑपरेशन टेक्निक चोरी किया जाता है. तो ये कंपनी जहाँ मैं कंसल्टेंट हूँ, उनके जो भी कैंडिडेट उनके पास आते हैं वो लोग उनके मुझे बायोडेटा देते हैं और उनके बायोडेटा के थ्रू मुझे पता चल सकता है ये पर्सन का, ये कैंडिडेट का मोटिव क्या है. तो वी कैन फाइंड आउट थ्रू ग्राफोलॉजी वेदर द कैंडिडेट इज राइट और नॉट. दूसरा, वो कैंडिडेट कौन सी पोजीशन पे जस्टिस कर पाएगा, मार्केटिंग, सेल्स या ऑपरेशन. सो थ्रू ग्राफोलॉजी आपका रिक्रूटमेंट बेनिफिशियल होता है. एक सिंपल सी बात है नमिता जी, मान लो आप एक एक्स पर्सन को अपॉइंट करते हो एक पोजीशन पे. आप कैसे अपॉइंट करोगे वो पर्सन? हाउ डू यू अपॉइंट दैट पर्सन? आप उनका वर्क एक्सपीरियंस लेटर देखते हो, आप उनका क्वालिफिकेशन देखते हो, आप उनके साथ 1 या 2 बार इंटरव्यू लेते हो और उनके बोलने चलने का तरीका जज करते हो. और सिर्फ 3 या 4, मैक्सिमम 4 बार मिलने के बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई हमें ये पर्सन को अपॉइंट कर दें. अभी 5 या 6 महीने के बाद आपको पता चलता है ये पर्सन सही नहीं है, ये तो हमारी टीम में झगड़ा करवा रहा है, ये तो कुछ कंपनी की बातें लीक कर रहा है, ये लोगों के साथ बहुत रफली श्रूड बात कर रहा है जो हमारी कंपनी का एटमॉस्फेयर नहीं है. Correct. तो आप क्या करेंगे नमिता जी? डेफिनेटली यू हैव टू डिसकंटिन्यू विद दैट पर्सन. बट डिसकंटिन्यू के केस में व्हाट डिड यू लूज? आपने क्या खोया? सिर्फ वो इंसान को खोया? नहीं, आपने अपना टाइम, अपना 4 या 5 महीने का सैलरी, आपने जो ट्रेनिंग पीरियड दिया और जो लोगों के साथ जो मन मुटाव हो गया वो भी आपने खो दिया. सो अगर हम कैंडिडेट को अपॉइंट करने के पहले उसके कैरेक्टर समझ लेते हैं तो हम ये सब कुछ सेव कर सकते. सेकेंडली, इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर. तो नीरव, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है. अब जैसे कि आपने कहा बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट आपको बेसिकली उनका जो बायोडेटा है या तो जो रेज्यूमे है वो आपको मिलता है एंड फिर आप उसका एनालिसिस करते हो. बट इज द रेज्यूमे और बायोडेटा हैंड रिटन या वो प्रिंटेड होता है? नमिता जी, हमारा एक फॉर्मेट होता है. ओके. और वो फॉर्मेट में कैंडिडेट को लिख के देना रहता है हैंड रिटन. ये वो पर्टिकुलर फॉर्मेट. ओके. उसमें होता है जैसे कि उसमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, नेम, फैमिली नेम, वो आपके घर पे कौन है, व्हाट इज योर हॉबी, बहुत सिंपल माई सेल्फ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस हैंड रिटन के बेस पे हम एनालाइज करते हैं. करेक्ट. या नाउ इट मेक्स सेंस. एवरीथिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट विल बी हैंड रिटन. करियर काउंसलिंग में भी चाइल्ड को हैंड रिटन सैंपल ही देना रहेगा. एब्सोल्युटली. हैंड रिटन सैंपल ही देना रहेगा. करेक्ट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग. जैसे कि हम बात करते हैं बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो गई, हम लोग बात कर सकते हैं लाइफ पार्टनरशिप की बात हो गई. तो यहाँ अगर मुझे कुछ फैक्ट्स जानने हैं तो ये मुझे पता चल सकता है हैंड राइटिंग से. हम बात कर सकते हैं एचआर पर्सनल. इफ यू आर एचआर मैनेजर, इफ यू आर एचआर एग्जीक्यूटिव, सो एचआर मैनेजर का जॉब होता है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में विन विन सिचुएशन लाना ताकि कंपनी भी सही चले और एम्प्लॉय भी नाराज होकर न जाए. तो एचआर पर्सनल को अगर पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय के घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे तो अभी उसको थोड़ा सा हम कम प्रेशर दें. तो जब ये एचआर पर्सनल समझता है तब जाके वो एम्प्लॉय भी अपनी कंपनी से प्यार करना शुरू कर दे. सो ये एचआर पर्सनल का बहुत अच्छा हेल्पफुल एडवांटेज हो सकता है कि वो एम्प्लॉय के नजदीक रह सकता है और एम्प्लॉय भी कंपनी के नजदीक रह सकता है. कंपैटिबिलिटी असेसमेंट, जस्ट अ सेकंड. कंपैटिबिलिटी असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया रिक्रूटमेंट का. रिक्रूटमेंट में तो आपने क्या खोया? टाइम, पैसा. बट अगर हम किसी रॉन्ग पर्सन के साथ रिलेशनशिप मना लेते और शादी के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो यहाँ तो पैसा छोड़िए, टाइम छोड़िए, हम हमारा फीलिंग्स गवा बैठ, हम हमारे इमोशंस गवा बैठ, विच इज अ मेजर लॉस टू अवर माइंड एंड लाइफ. सो थ्रू हैंड राइटिंग बिफोर मैरिज
you can have this compatibility assessment. जैसे कि अभी के जमाने में या पुराने जमाने में हम कुंडली मिलाते हैं, तो कुंडली मिलाने जैसा ये चीज है जहां हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि आप वो पर्सन के साथ compatible हो कि नहीं. So compatibility assessment in case of life partnership. And lastly we talk about family guidance. जैसे कि जब बच्चे बड़े होते, टीनेजर में जाते हैं, तो टीनेज का ये मानना रहता है कि हमारे पेरेंट्स ना हमेशा हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, हमेशा पढ़ने का, हमेशा करियर के बारे में सोचो, है ना, ये फ्रेंड्स पीछे क्या पड़े हैं, हम मोबाइल ले लेंगे आपका, बाहर तुम्हें इतना घूमने क्यों जाना है. और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे तो हमेशा मोबाइल के अंदर ही पड़े रहते हैं, बच्चे लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है. तो पेरेंट्स और बच्चे एक्चुअली, टीनेजर में बोलूंगा, टीनेजर और पेरेंट्स एक्चुअली एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अगर वो सही टाइम पे वो सॉल्व नहीं किया गया नमिता जी, तो लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड क्रिमिनल्स आर बॉर्न. अगर टीनेजर को सही टाइम पे उनको मदद नहीं मिली और पीयर प्रेशर के अंडर अगर उन्होंने कुछ गलत स्टेप ले लिया, एडिक्शन हो गया कोई चीजों का, तो क्रिमिनल्स कैन बॉर्न. तो अगर हम सही टाइम पे टीनेजर्स के प्रॉब्लम समझ ले, जैसे कि आपने सुना रहेगा काफी पेरेंट्स का ये आदत होता है, हमारे टाइम पे हम लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के बैठते थे, हमारे टाइम पे तो ट्यूशंस भी नहीं हुआ करता था, हमारे टाइम पे ऐसा होता था. तो बच्चा सोचता है तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे माँ बाप गरीब थे, हमारे माँ बाप गरीब नहीं है तो हम क्या करें. तो क्या होता है ना, ये सब बातें बच्चे सोचते हैं. तो अगर हम बच्चों की नजरिए से सोचे तो डेफिनेटली से क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा तू कुछ भी बात बता, हम तेरे फ्रेंड है. और जब हम बताते हैं कि मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए, क्या पागल है क्या, मोबाइल इतना है ना, अभी फ्रेंड को बोलेंगे तो चल मैं तेरे लिए कुछ कर देता हूँ. तो सी हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रेंड की तरह, पर हम लोग बन जाते हैं माँ बाप, जिसकी वजह से देयर इज अनवांटेड फ्रिक्शन बिटवीन टीनेजर एंड अ पेरेंट, और पूरा फैमिली का जो एम्बियंस होता है वो खराब हो जाता है. बिकॉज कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते हैं, पापा ऑफिस से आए झगड़े चल रहे, मम्मी कुछ काम कर रही, बच्चा कुछ कर देता है. तो handwriting के थ्रू we can understand the problems of teenager and parents can strengthen the relationship in their family. So this is how the handwriting में आपके अलग अलग करियर ऑप्शंस है. आप रिक्रूटमेंट में जा सकते हो, रिक्रूटमेंट में अगर आप कॉर्पोरेट में अगर आपको ओपन अप मिल जाता है, you can earn lots of money. So there are many good career options. Definitely मैं यहाँ रिपीट करूंगा, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आप डॉक्टर अच्छे हैं, वैसे अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, एनालिसिस ज्यादा है, तो आपका ऑफ कोर्स ये बिजनेस भी अच्छा. वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड नीरव, बड़ा मजा आया देख कर कि एक्चुअली ग्राफोलॉजी उसके मतलब कितने सारे बेनिफिट्स है, कितने सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है. थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दैट स्लाइड नीरव. सो नीरव, अभी जैसे कि पैंडेमिक ये सब चल रहा है, अभी आपने काफी केसेस इवेल्युएट किए हैं. सो पैंडेमिक में ऐसे कुछ हुआ कि आपको कुछ यूनिक टाइप ऑफ केसेस मिले पैंडेमिक में, क्या ऐसा कुछ हुआ? Yes, I will not the word use unique. I will use the word, जैसे कि हम बात करते हैं पैंडेमिक में सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि there is something called as black revenge. एक वर्ड होता है black revenge. जैसे आपने सुना रहेगा कि कुछ महीनों पहले मनाली में पानी खत्म हो गया था. इतने सारे टूरिस्ट हो गए थे कि मनाली में पानी खत्म हो गया था नॉर्मल, बिकॉज सब लोग मनाली घूमने जा रहे एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक रिवेंज. क्या होता है ये ब्लैक रिवेंज? बेसिकली कि जब आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत देर तक रखा जाता है या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जब आपके साथ हो रहा है, तो आप एक पैटर्न में सोचना शुरू करते हो. और अगर आप देखेंगे इंडिया में सबके साथ वही हो रहा था, सबके साथ घरों में बिजनेस का, मनी का, सबको प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से सब लोग एक पैटर्न में सोचना शुरू कर दिए. तो एक पैटर्न में जब सब लोग सोचना शुरू कर देते हैं, तो सब लोग का सोचना वही हो गया, भाई हमें घूमने जाना, हमें बाहर जाना, सबका सोचना वही था. भाई जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई से लेके मुझे विरार लेके जाओ चलेगा, पर बाहर जाना. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक रिवेंज. सो आपने जैसा क्वेश्चन पूछा नमिता जी कि पैंडेमिक में कुछ यूनिक, तो यूनिक ये था कि सबका थॉट प्रोसेस ना सेम था. सबका थॉट प्रोसेस यही था कि मुझे कुछ करना है, मुझे पैसा कमाना, और वो पैसा कमाने का जरिया था ऑनलाइन. तो इसमें ऐसा भी था, जो मेरे कुछ क्लाइंट्स मुझे मिले, जो लोगों ने उनको लॉस भी हुआ, कुछ लोग अच्छा पैसा कमाए भी, बिकॉज सबको ऑनलाइन का इतना बेहतरीन नॉलेज नहीं होता है. तो सब लोग ने ऑनलाइन में कमाने के चक्कर में स्टार्टेड.
सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर नमिता जी, यहाँ क्या होना शुरू हो गया, जैसे कि मान लो एक फैमिली में चार सदस्य है, मम्मी पापा भाई बहन, 2 सिबलिंग्स है। अभी ये चारों का पैंडेमिक से पहले सोचने का तरीका अलग था। पापा कुछ अलग सोचते थे, मम्मी कुछ अलग सोचती थी, भाई बहन कुछ अलग सोचते। पर जैसे मैंने आपको ये बताया कि जब ये ब्लैक रिवेंज पर्टिकुलर इवेंट होता है, जिसकी वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो पॉजिटिविटी बोलो या नेगेटिविटी बोलो, ये एक जैसा हो गया। और ये जब एक जैसा हो जाता है ना, तो उनको समझाने में थोड़े चैलेंजेस आ जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास हस्बैंड और वाइफ आए अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो हस्बैंड कुछ जगह नेगेटिव है, वाइफ कुछ जगह नेगेटिव है, दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स अलग है। बट ये पैंडेमिक के दौरान ऐसे कुछ क्लाइंट्स पाए गए जहां उनका सोचने का तरीका वो सिमिलर। तो अगर मैं बोलूं कि आपको इस तरह से रिएक्ट करना है, आपको इस तरह से थेरेपी लेना है, तो सामने वाला भी उसी तरीके से सोच रहा है, और वो एनकाउंटर कर पाना उनके लिए, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ये पैंडेमिक में ये चैलेंज एक आया था। पर यस, जैसे कि टाइम आगे चला गया, जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ, जब लोग बाहर जाना शुरू हुए, लोगों को देखना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना काम शुरू किया, तो ये इसका असर धीरे धीरे कम हो गया। एंड यस, पैंडेमिक में ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहां ऐसे भी बहुत सारे लोग यूनाइट हो गए नमिता जी, कि जो बेटा या जो बेटी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते थे, नेबर से बात नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ XYZ झगड़े सब जगह होते हैं। तो पैंडेमिक के कारण उनकी बहुत सारी यूनिटी भी हो गई है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लॉकडाउन सिर्फ तकलीफ था, बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आया, बट मेरे केस में मैं बोलूंगा बहुत कुछ सिखा कर गया है। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है, आपको क्या नहीं सीखना है। जैसे कि एक सिंपल का तौर पे मान लो, जब आपका वॉलेट चोरी हो जाता है तो हम क्या करते हैं? कुछ लोग बोलेंगे, गाली देंगे कि यार वो ऐसा चोरी करके चला गया, तो उसको गाली देंगे, भगवान को गाली देंगे, कुछ ना कुछ अगर सिस्टम को गाली देना शुरू करेंगे। बट मैं ऐसा चीज समझता हूँ कि वॉलेट अगर चला गया तो सबसे पहले उसमें सीख क्या था? सबसे पहले ये था कि, ये मैं फिलोसॉफी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि शायद उसको ज्यादा जरूरत थी। भगवान को लग रहा था कि वो वॉलेट में जो भी कुछ था वो आपसे ज्यादा उसको जरूरत थी। ये होगी फिलोसॉफी की। अभी आप बोलेंगे नीरव, जब तुम्हारे साथ ये होगा ना, तुम्हें पता चलेगा। वो वॉलेट में जब 5,000 रुपए होंगे और जब चोरी हो जाएगा तब ऐसा बोलना उसको ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, मान लो ये मेरे साथ हो जाता है, तो मैं ये चीज समझूंगा नमिता जी कि वॉलेट चोरी हुआ कैसे। मैंने पीछे रखा था मेरे जीन्स के, तो मुझे ये सीखना है कि मुझे मेरा वॉलेट या तो बैग में रखना है या तो मुझे जीन्स के आगे रखना है अगर मैं पैक ट्रेन में जा रहा हूँ। तो ये सीखने के लिए मुझे 5,000 रुपया देना पड़ा, है ना। आई बिलीव नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट मदर्स लव नमिता जी। माँ के प्यार के अलावा इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको कुछ सीखना भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कुकिंग करते हैं, आई लव टू कुक, तो जब हम कुकिंग करते हैं तो पहली बार कुकिंग करते हैं, तड़का लगाते हैं तो हाथ पे तेल आता है, तो तकलीफ होती है। तो आपको तकलीफ इज अ टीचिंग कि आपको तड़का कैसे लगाना। तो टू लर्न समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी समथिंग। तो 5,000 रुपयों में मैंने ये सीखा नमिता जी कि मेरा वॉलेट ना मुझे पीछे नहीं रखना है, मुझे ध्यान रखना। तो आई बिलीव दिस थिंग। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इस पैंडेमिक में ऐसा भी कुछ हुआ जहां लोग यूनाइट हो गए, कुछ लोग अलग हो गए, बट यस, फाइनली हैंड राइटिंग की मदद से हम ये जान पाए कि एक्चुअल रीजन क्या था। एंड तकरीबन मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स की बात करूं तो ऐसे कुछ अराउंड 27 केसेस थे मेरे पास, जहां डिवोर्स केसेस भी आए थे, वेयर ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ गॉड एंड नॉलेज उसमें से 21 केसेस नेगेटिव हो गए, उन्होंने डिवोर्स का नहीं सोचा आगे। बाकी के जो केस थे वो अभी तक लाइनअप में है, वो लोग अभी तक 50-50 है। बट यस, 21 लोगों ने वापस ले लिया है कि उनको भी डिवोर्स नहीं लेना। तो ये भी हुआ है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है अपने वर्क में। कुछ लोग स्पेशली जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जिनको कंप्यूटर, जिनको व्हाट्सएप नहीं आता था, वो लोग आजकल जूम पे मीटिंग लेना चालू कर देते अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ यू टॉक अबाउट माय फादर इज 70 एज। तो ऐसा था कि लॉकडाउन के वक्त सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन था कि आपको अलाउड नहीं था, तो पहली 2 बार जूम हम लोग ने चालू करके दिया। तीसरी बार उनको फील होना शुरू हुआ, यार हर बार बेटे को बोलना पड़ता है। तो एक बार बाजू में बैठे, तो भाई मेरे को सिखा है, तो अभी वही चालू हो गए। कभी कभी मुझे उनसे परमिशन लेना पड़ता है, पापा मुझे लैपटॉप दे दो, भाई मेरा लेक्चर है। सो सी, दिस इज हाउ ओल्ड एज पीपल लर्नड आल्सो। लॉकडाउन में कुछ लोगों ने, कुछ फैमिली ने लाइफ भी गवाई। तो यस, डेफिनेटली इट इज अ सैड थिंग।
So Neera, what do you think is now the future of graphology? आपके फ्यूचर गोल्स क्या है ग्राफोलॉजी को लेकर? मेरे फ्यूचर गोल्स है, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगा नमिता जी कि इंडिया में ग्राफोलॉजी मैं ये बोलूंगा बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, जब मैं लेक्चर लेने जाता हूँ, सेमिनार लेने जाता हूँ या कोई सोशल गैदरिंग में जाता हूँ, तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस ग्राफोलॉजी क्या है, साइंस कितने साल पुराना है, 20-30 साल पुराना? नो नमिता जी, लेट मी टेल यू, ग्राफोलॉजी इज 3000 years old साइंस। Okay. सबसे पहला रोमन एम्परर नेरो और बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल ने ये यूज किया था। Oh, that's उसके interesting. बाद ये 3000 years old साइंस है ये। दूसरा नमिता जी, इस पे एक ऑफिशियल बुक लिखा गया था आज से 400 साल पहले, Oh, इन is it? 1622 बाय कमिलो बैल्डी। Wonderful. कमिलो बैल्डी इज नॉट अ नॉर्मल ग्रेजुएट नमिता जी। कमिलो बैल्डी एक इटालियन मेडिकल डॉक्टर थे एंड ही वाज प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी एट बोलोग्ना यूनिवर्सिटी, इटली। Ah, तो okay. ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग एनालिसिस का जिन्होंने निर्माण किया है वो बहुत दिग्गज लोग रहे हैं, और आज से मैं बोलूंगा 3000 साल पहले और कमिलो बैल्डी 400 साल पहले इसकी नींव डाल के गए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में अगर मुझे रॉकेट का बेस्ट इंस्टीट्यूट जानना है तो कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसरो। Right. अगर मेडिकल का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है तो आप बोलेंगे दिल्ली एम्स। Correct. इंजीनियरिंग का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है तो आईआईटी। वैसे ही ग्राफोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। 1800 में जर्मनी ने जर्मन ग्राफोलॉजी सोसाइटी सेट किया था, 1800 में पेरिस। ओके, 1985 से द ग्राफोलॉजी स्कूल ऑफ लंदन, इन्होंने डिग्री बैचलर कोर्स शुरू किया था इसमें। तो क्या है नमिता जी, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट इंडिया में थोड़ा सा ना अंधविश्वास ज्यादा चलता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप ये अंगूठी पहन लीजिए, आपको इससे शादी हो जाएगी या फिर काम मिल जाएगा या फिर आपकी दुविधा चली जाएगी, Correct. या फिर आप किसी गाय को घास खिला दीजिए तो आप उस बात में जल्दी आ जाते हैं। मैं बोलूंगा ये गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो साइंटिफिक, बट समवेयर वी बिलीव इन शॉर्टकट्स समवेयर। Correct. तो क्या हो जाता है ना, ग्राफोलॉजी इज नॉट अ शॉर्टकट। अगर आपके हैंडराइटिंग में मुझे कुछ पता चलता है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, आई विल सजेस्ट यू सम ग्राफोथेरेपी। Right. ग्राफोथेरेपी ये आपको 21 दिन से लेके 66 डेज तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर हम पेशेंस रहेंगे तो आपको वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि Correct. मैं मेरी बात करूं नमिता जी, 2013 में मुझे एक डिजीज हो गया था कॉल्ड एज डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, Right. जहाँ मेरा पूरा लेफ्ट बॉडी पार्ट ब्लड क्लॉट हो गया था, पूरा Oh. लेफ्ट बॉडी पार्ट, एंड 2 years I was bedridden, totally bedridden, everything was on the bed. But absolutely with the help of doctors, allopathic medicine and graphology, I again started life my from 2015. मैं जीरो से शुरुआत किया था, मैंने 2000 जीरो नहीं, मैंने माइनस से शुरुआत किया था 2015। तो यस, ग्राफोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ के अंदर। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे ग्राफोलॉजी हो सके तो बहुत से बहुत लोगों को बताना ग्राफोलॉजी होता क्या है। मैं एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे नमिता जी मैं फ्री वेबिनार लेता हूँ टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज ग्राफोलॉजी। ओके, हाँ, उसमें फिर अगर किसी को कोर्स करना है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे आई टेक फ्री वेबिनार टू एक्सप्लेन व्हाट इज ग्राफोलॉजी। और आप बिलीव नहीं करेंगे नमिता जी, काफी लोग ये वर्ड यूज करते हैं, भाई लॉकडाउन ने तो हमें मार डाला है, बट मेरी लाइफ में उल्टा हुआ है। मेरी लाइफ में जितने मुझे 2015 से लेके 2020 तक लर्नर्स नहीं आए थे, उससे 4 गुना मैं बोलूंगा मेरे लर्नर्स 2020 से बढ़ गए। Wonderful. Because सबसे बड़ा मीडियम था ऑनलाइन। पहले हम Correct. क्या करते थे, जगह जगह जाके वेब सेमिनार्स लेते थे, मनाते थे, स्कूल में जाते थे, बट जब ऑनलाइन आ गया तो सब कुछ इजीली अवेलेबल हो गए। सो नाउ आई टीच इन सिंगापुर, मालदीव्स, मलेशिया, दुबई, आई टीच इन ऑल दिस कंट्री। सो अपार्ट फ्रॉम Outstanding. इंडिया सारे कंट्रीज में मेरे लर्नर्स है, मेरे स्टूडेंट्स है, एंड मेरे बैच स्टार्ट होते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock से लेके नाइट 12:30 के भी बैचेस हो इंडियन टाइम। तो उस कंट्री के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना रहता है। तो यस, आई कैन से
ग्राफोलॉजी इज ग्रोइंग. अभी जैसे कि मेरा एक नेक्स्ट बैच यूके में स्टार्ट हो रहा है, सो ऑफ कोर्स फ्रॉम इंडिया, सो ऑनलाइन बैच. तो देयर आई गॉट इंडियंस ओनली, इंडियंस ही है बट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके. तो वो लोग इस बात को बहुत वेलकम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड ये स्लोली एंड स्टेडीली इट विल बी गुड, डूइंग गुड. मुझे जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं. अभी मुझे जो अभी रिसेंट जो मेरे बैच में है वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी है, आर्मी से भी है. मुझे एक बैच में जो एयरफोर्स में जो काउंसलर होते हैं वो भी मेरे पास से पढ़ रहे हैं. कॉर्पोरेट से भी लोग आते हैं. तो और सबसे ज्यादा मुझे मदर टीचर्स, ये लोग भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं. तो यस, मेरे जो लर्नर्स है वो बहुत ही अलग अलग फील्ड से आते हैं. कुछ लोग 70-60 इयर्स के होते हैं, कुछ लोग मेरी उम्र से कम भी होते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है. एंड यस, एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब. Excellent, Nirav. About graphotherapy. So, is graphotherapy same as rapid transformational therapy? What is it exactly? How does it work? RTT ना, it is made up of two things. एक होता है something called as hypnotherapy, Okay. और एक होता है NLP, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. Correct. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक चेयर पे बिठा दूं और मैं आपको बोलूं कि नमिता जी अभी आपको ठंडी लग रही है, 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 ऐसा बार बार जब बोलता जाऊंगा तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद कुछ चीजें ऐसी होगी जहां आपको ठंडापन फील होगा. सो इट इज बेसिकली RTT is based on hypnotherapy and your neuro linguistic program NLP, where you train your mind. It's all about training your mind. It's all about, you can say, about law of attraction. It's all about affirmation, talking positive, 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 positive. ठीक क्या होता है ना, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए. तो पॉजिटिव लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं. Correct. एज अ मेडिकल पर्सन नमिता जी, हमारे ब्रेन में देर इज वन सिस्टम कॉल्ड एज RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इसको रास बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ये क्या करता है, ये जो चीज आप बार बार सोचते हो उसके पिक्चर्स आपके सामने क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. Right. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने हॉरर मूवी देखा 2 से 3 बार, और अगर आप रास्ते से अकेले जा रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके पीछे कोई आ रहा है. Correct. या फिर आपने मान लो कल हो ना हो मूवी देख लिया जहाँ न्यूयॉर्क है, और आपने वो मूवी 2-3 बार देख लिया, तो आपको ऐसा लगेगा यार न्यूयॉर्क तो जाना चाहिए यार. जैसे ही आप ये बोलते हो न्यूयॉर्क तो जाना चाहिए, आपके फेसबुक में वहाँ एक आ गया न्यूयॉर्क ट्रिप. तो अगर आपने वो न्यूयॉर्क ट्रिप पे आप 5 सेकंड से भी ज्यादा देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैप्चर कर लेगा और आपको न्यूयॉर्क ट्रिप के ब्रोशर आना शुरू हो जाएंगे, आपको न्यूयॉर्क के ही सब कुछ रिलेटेड पोस्ट आना शुरू हो जाएंगे, और आपको फील होना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स इज कॉलिंग मी टू यूनिवर्स. वो यूनिवर्स नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. The moment you spend 5 seconds more than on any post, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पकड़ लेता है. तो क्या होता है नमिता जी, मैंने ये आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, हमारे बॉडी में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम रास बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. जो द थिंग जिसको हम लोग बार बार देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, जो चीज बार बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं नमिता जी, ट्विंकल ट्विंकल Little star. मैंने तो आपको नहीं बोला लिटिल स्टार आएगा, जॉनी जॉनी Yes, आपको Papa. टच से बोलेंगे. तो आपके दिमाग में इतना स्टोर्ड है कि ABCD EFGHI, तो आपको देर नहीं लगेगा सोचने के लिए. तो जो चीज आपके दिमाग में बहुत ही कोर तरीके से स्टोर्ड है, ये रास उसकी पिक्चर्स आपको दिखाना शुरू कर देगी. सो क्या होता है नमिता जी, आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि इस ग्राफोथेरेपी इज सिमिलर टू रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी. रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी इज, आई विल से, इट इज समथिंग टेम्पररी. उस टाइम का प्रॉब्लम आपके लिए वो सॉल्व कर देता है. हाँ, मैं ये बोलूंगा कि ये परमानेंट हो सकता है अगर इसमें रेगुलर प्रैक्टिस की जाए. हालांकि हर थेरेपी टेम्पररी होती है. Okay. अगर आपको सर्दी जुकाम है, अगर आपने 3 डोज के बदले 1 ही डोज लिया तो आपको सर्दी जुकाम वापस आने ही वाला है. तो अगर आप ठंडा पानी हमेशा पीते रहेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली तबीयत बिगड़ने वाली. सेम वे अगर कोई भी चीज आप कंसिस्टेंट करते रहेंगे तो ही परमानेंट हो. सो RTT इज बेस्ड ऑन हिप्नोथेरेपी, जो चीज बार बार बोली जाती है. Correct. और ग्राफोथेरेपी इज समथिंग
कि मान लो आप टी कुछ अलग तरीके से लिखते हैं और आपके हैंड राइटिंग एनालिसिस करने के बाद मैं बोलूंगा आपको कुछ इस तरह लिखना है. So when you practice such kind of tea again and again, तो आप जब अलग तरीके से टी लिखते हैं तो आपके इंडेक्स फिंगर पे ज्यादा प्रेशर आएगा और थंब पे ज्यादा प्रेशर आएगा. तो ज्यादा प्रेशर आने की वजह से आप कॉन्शियस हो जाते हो और ये आपके हर पॉइंट में फिंगर प्रेशर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है. करेक्ट. सो व्हेन यू राइट टी, जब आप टी अलग तरीके से लिखते हो तो ये प्रेशर डेवलप होने की वजह से आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट होता है और वो स्टिम्युलेशन से पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं और वो पॉजिटिव हार्मोन्स आपकी सोच बदलती. सो आरटीटी इज बेस्ड एब्सोल्युटली on NLP and hypnotherapy, and graphotherapy is based on handwriting, and yes, practice दोनों केस में होती. Such an enlightening information, Nirav. So Nirav, अभी जैसे कि अभी आपने कहा about this particular therapy, graphotherapy. अभी what is the minimum age of a person to actually be eligible for it? Like अभी say for example अगर समझो बच्चे हो गए तो अब बच्चों की भी कोई एज होती है कि like from this age till this age ग्राफोथेरेपी या तो फिर ग्राफोलॉजी का जो एनालिसिस होता है वो किया जा सकता है. व्हाट इज द एज रेंज? Yes, the age range, Namita ji, is 12 plus. Okay. The scientific reason is कि कोई भी लड़की या लड़का, अगर मैं बोलूँ आज के जमाने में, एक लड़की या लड़का जो उनका मेच्योरिटी होता है, जहाँ उनके सेक्सुअल हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी बॉडी मेंटली स्टेबल हो जाती है, that age is 12 plus. So graphology में we always advise the candidate should be 12 plus because scientifically हमारा जो ब्रेन होता है, ऐसा नहीं कि 10 साल वाले बच्चे को अक्ल नहीं है, डेफिनेटली है, बट एक एडल्ट की तरीके से उनका जो बॉडी है वो 12 प्लस के बाद उनका ब्रेन एक आराम से कंडीशन हो जाती है. सो 12 प्लस इज द राइट एज. और 12 प्लस से जो नीचे वाली एज होती है उनके लिए हम ड्राइंग एनालिसिस, या जो लिख नहीं पाते उनके लिए हम लोग ड्राइंग एनालिसिस करते हैं. बिकॉज जो ब्लू कॉलर जॉब वाले होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जिनको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, बट वो लोग ड्राइंग कर सकते हैं. तो ड्राइंग में आपको पहाड़ बनाना रहता है, सन बनाना रहता है, पानी बनाना रहता है, तो ड्राइंग एनालिसिस किया जाता है फॉर लेस देन 12 ईयर्स एंड जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता. ओके. एंड अगर जिनको अगर लिखना पढ़ना आ जाता है बट दे आर लेस देन 12 इयर्स, उनका भी आप कुछ ऐसे सेपरेट वे में एनालिसिस करते हैं? नो. तो ग्राफोलॉजी में वी आर स्ट्रिक्टली फॉर मोर देन 12 इयर्स ओनली. ओके. इफ द क्लाइंट इज लेस देन 12 तो हम ड्राइंग एनालिसिस में ही जाते हैं. करेक्ट. We do not go for it because वो सही नहीं रहेगा, वो सही नहीं रहेगा. अग्री. सो नीरा, आप कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज बता सकते हैं, मे बी से रिलेटेड टू चाइल्ड साइकोलॉजी या तो से क्रिमिनल साइकोलॉजी, या ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग केसेस जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही एनरिचिंग हो सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं? Yes, definitely. See, एक केस मैं मेरा ही बताता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड था 10th स्टैंडर्ड का, एंड उसका हमेशा ये था कि आप जब उससे कभी भी कुछ चीजें मांगो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने उनसे पेन मांगा, तो वो क्या करता था, पूरा ऐसा कंपास बॉक्स ना आपके सामने ऐसा ढेर कर देता था. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उससे एक पेन मांगो तो गुस्से में आके पूरा पेन ढेर कर देगा. अगर आप उससे बोलो कि उसका नाम मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसको आप कुछ भी बोलो कि भाई अब ये बुक ला के दो, तो ऐसा डायरेक्टली बुक्स ला के दे देता. तो पढ़ाते पढ़ाते ये सब चीजें मुझे समझा कि कुछ वियर्ड चीज हो रही है. ऐसा नहीं हो रहा है कि वो गुस्से में कर रहा है या फिर मजाक में कर रहा है, कुछ ना कुछ है. तो बातों बातों में मैंने उससे कुछ लिखवा लिया माई सेल्फ, एंड मैंने उसके हैंडराइटिंग एनालाइज किए. और जब उसके हैंडराइटिंग एनालाइज किए तो ये पता चल रहा था कि ये पर्टिकुलर जो चाइल्ड है, ही वाज द मोस्ट इग्नोर्ड चाइल्ड एट होम. ही वाज नॉट अ स्टेप चाइल्ड, वो अपना ही चाइल्ड था. अच्छा. और उनका जो दूसरा भाई था, उसका जो दूसरा भाई था, छोटा भाई था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. तो जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते थे. दैट्स रियली तो ये सैड. सब चीजें जब ध्यान नहीं दे रहे, तो जिस वजह से ये पर्सन क्या था कि हम हमेशा इग्नोर होता था. आई एम सो सॉरी, दिस चाइल्ड वाज ऑलवेज इग्नोर्ड. और इग्नोरेंस की वजह से क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ तरीके से अटेंशन चाहता था. कि जैसे ही मान लो आप बात कर रहे हो कि चलो भाई नमिता जी हम घूमने जाते हैं, वो बोलेगा अरे मैं तो यूएस घूम के आया हूँ, मैं तो इधर गया हूँ उधर, और कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरीज बना रहा था जहां में वो लोग वो अटेंशन चाहता था. सो जब उसके हैंडराइटिंग स्टडी किए गए तो ये समझ में आ रहा था कि ही वॉज ऑलवेज इग्नोर्ड. और हालांकि इग्नोरेंस वॉज नॉट
कि नेगेटिव इग्नोरेंस जस्ट बिकॉज उसके घर की स्थिति अलग थी, उसके पेरेंट्स उस पर अटेंशन नहीं पे कर पा रहे थे। करेक्ट। तो ये बच्चे के साथ जब हमने उसके पेरेंट्स से बात की, जब मैंने उसके पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स का तो सिंपल था कि सर हमारे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बच्चे का कैसे ध्यान रखें। तो ऑब्वियसली जब मैंने इस बच्चे का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, वो बच्चे से बात करना शुरू किया, उसका ग्राफोथेरेपी स्टार्ट किया, टाइम लगा, 3 महीने में टाइम लगा। उसके कुछ लेटर्स चेंज किए। लेटर्स चेंज करने के बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि ही रियलाइज कि ही इज डूइंग ऑल दिस। ओके। जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपको एहसास हो जाता है, तो कॉन्शियसली यू स्टॉप रिड्यूसिंग और धीरे धीरे वो गलती कम हो जाती है एंड फाइनली वो बंद हो जाती है। राइट। सो ये एक केस स्टडी था बच्चे का, जहाँ हैंडराइटिंग की मदद से टीचर्स जनरली जो ये रहते हैं, कुछ टीचर्स ये होते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, आई एम सॉरी टीचर्स, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो टाइम के इतने पाबंदी होते हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाता है अगर बच्चे लेट होते हैं। बट मैं ये बोलूंगा मेरे फेलो टीचर्स को कि बच्चा अगर 1, 2, 3, 4 बार लेट आ रहा है तो कुछ कारण होता है। अगर वो आपको परेशान भी कर रहा है, वो परेशान करने के पीछे उसका कुछ मेंटल प्रॉब्लम होता है, वो अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे ये बच्चे को जब मैंने देखा कि कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, कुछ अलग बिहेव कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक टीचर को गुस्सा भी आना शुरू हो सकता है। कुछ टीचर्स इग्नोर भी करेंगे कि भाई हमें क्या करना है, सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जाना है। बट मैं ये मानता हूँ नमिता जी कि मदर, आई एम सो सॉरी नमिता जी, मदर के बाद अगर कोई दर्जा है तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पोजीशन इज ऑफ टीचर। मैं फादर भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा टीचर, बिकॉज मदर अगर जन्म देती है तो मदर का रियलाइजेशन, मदर का इम्पोर्टेंस सिखाने वाले टीचर होते हैं। तो टीचर इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, जो आज के इंडिया में हमें लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं टीचर हूँ, मैं मेरा पूरा एक मेडिकल करियर छोड़ के मैं यहाँ टीचिंग में इसी वजह से आया हूँ, बिकॉज आई थिंक टीचर इज द बेस्ट पोजीशन। हम टीचर चाहे तो एक नेशन को खड़ा भी कर सकता है, और टीचर अगर इररिस्पॉन्सिबल रहेगा तो नेशन टूट भी सकता है। तो आज अगर हम बोलते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत है, पुलिसमैन है, ओके, मैं ये घमंड के साथ नहीं, पर ये मैं प्राउड के साथ बोलना चाहूंगा कि आप डॉक्टर बोलो, आर्मी बोलो, IAS बोलो, IPS बोलो, ये सब everyone is nothing but passes through a teacher. So टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इसलिए टीचर अगर ये चीज सीखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि वो एक अच्छे सिटीजन को डेवलप करने में मदद करते हैं। मैं तो ये बोलूंगा नमिता जी कि एक टीचर पे एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर 552 टीचर्स अगर एक एक अच्छा बंदा पार्लियामेंट में भेज दे तो पूरा भारत की शक्ल चेंज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। सिर्फ 552 MP अगर बेस्ट आ गए, 552 टीचर्स ने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, तो आप सोचिए कि हमें फिर किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी विल बी द बेस्ट नेशन। सो दिस इज व्हाट अबाउट द केस स्टडी थ्रू अ चाइल्ड आई कैन टॉक। इफ आई टॉक ऑन अ नेगेटिव पार्ट, ऑन अ क्रिमिनल पार्ट, हम ग्राफोलॉजी में ये बोलते हैं कि जब कभी भी सैंपल में पियर्सिंग ऑफ पेपर होता है, पेपर में होल होता है, सो देयर इज अ क्रिमिनल टेंडेंसी। वो पर्सन को वो चीज बाय हुक और क्रुक पे चाहिए। तो ये चीज हमें एक अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मेरे केस में भी एक आया था, एंड वो केस ऐसा था कि द पर्सन यूज्ड टू लाइक ईटिंग रॉ मीट। उसको रॉ मीट खाना अच्छा लगता था। ओके। और उसके फादर नहीं थे, एंड उसकी मम्मी को, बहन को वो बहुत अब्यूज करता था इन अ वेरी वल्गर वर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो फाइनली किधर से पता चला कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, और उसकी मदर मेरे पास आई। उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ ट्रीटमेंट करता हूँ, कुछ दवा देता हूँ जिसको बच्चा, ये उनको ऐसा लगा था। तो वो मदर मेरे पास आई और मैंने उनको समझाया कि ये दवा, ये कुछ ऐसा अंधविश्वास, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ साइंटिफिकली एक तरीका होता है। और वो क्राइम क्या किया था वो डेफिनेटली मैं नहीं बता पाऊंगा, बट इट वाज लाइक दिस कि उसने पैसा चोरी किया था और सब कुछ चीजें थी, अपने घर पे से पैसा चोरी किया था। सी, इंसान जब पैसा घर पे से चोरी करता है, फिर धीरे धीरे बाहर से भी पैसा चोरी करना शुरू कर सकता। तो ऐसी चीजें थी। उसकी मम्मी ने मुझे ये बातें बताई कि उसके फैमिली मेंबर में से
उसके रिलेटिव्स के वहां से भी चीजें चोरी करता है, बेच देता है एंड सो ऑन। और वो पैसों का उसको एडिक्शन हो गया था। ही यूज्ड टू बाय अल्कोहल एंड एवरीथिंग। तो उसकी मम्मी ने मुझे ये सब बातें बताई और उसकी बहन भी रोते रोते आई थी, ये सब थी। और समवेयर उसके हैंडराइटिंग पता चले एंड इट वाज कंफर्म ही वाज हैविंग सम क्रिमिनल टेंडेंसी। और जैसे मैंने बताया कि उसके दिमाग में वल्गर टेंडेंसीज आ रही थी, तो इट मे डेवलप उसके सिस्टर के लिए, उसके कजिन्स के लिए वल्गर टेंडेंसीज डेवलप हो रही थी बिकॉज वो टीनेजर था। अच्छा। तो जब उसके हैंडराइटिंग समझे गए तो उसको बहुत टाइम लगा समझाने के लिए कि आपको ये ग्राफोथेरेपी कैसे करना है। उसको लालच दिया गया, उसको झूठ बोला गया कि आपको ऐसे लिखना रहता है, ये करना रहता है। फाइनली ही डिड एंड आई कैन से 9 महीने लगे वो पूरी टेंडेंसी चेंज करने के लिए। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट राइट नाउ ही इज अ ग्रेजुएट, he is settled in Canada. Oh, amazing. So this is how the things can change. And now वो person कभी कभी मेरा उससे बात होता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, मुझे ऐसा लगता था एक्चुअली उसके पापा घर छोड़ के चले गए थे। अच्छा। तो उसको ऐसा ही था कि मुझे हम लोग को ऐसा कैसे छोड़ के चले गए, मतलब मेरे बाकी सब फ्रेंड्स की सब चीजें जरूरतें पूरी होती है तो मेरी क्यों नहीं पूरी हो सकती। तो वो जो शॉक था बच्चे के माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे, वो काफी असर कर गया। सो दिस इज हाउ इट कैन क्रिमिनल मेंटालिटी ऑल्सो कैन बी चेंज। सेकेंडली, आप क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी हेल्प कर सकता है। तो अब्रॉड में अगर आप देखेंगे, स्पेशली यूएसए में, देयर आर क्रिमिनल ग्राफोलॉजिस्ट जो ये साइंस को यूज करके क्राइम्स को रोकते भी है और कम भी कर। मेनी देयर इज वन ऑथर कॉल्ड एज अमीर बराका। ही वाज अ डिसलेक्सिया चाइल्ड और उनके चाइल्डहुड में उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया था, किसी को मार डाला था कुछ, तो आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट अमीर बराका ने कुछ क्राइम किया था तो उनको जेल हो गई थी। और वहाँ साइकोलॉजिस्ट को पता चला कि अमीर बराका जो है वो बिकॉज ऑफ डिसलेक्सिया, बिकॉज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम उन्होंने एक क्राइम किया है। लेटर विद द हेल्प ऑफ ग्राफोथेरेपी उनको सुधारा गया, उनकी सजा भी कम की कर दी और उनको जेल से छोड़ दिया गया। उनके बाद नमिता जी उन्होंने पढ़ाई की, he became an advocate. Oh wow. Amir Baraka became an advocate and he became advocate of those prisoners जिनको ये प्रॉब्लम था डिसलेक्सिया का, मेंटल प्रॉब्लम का, जिसकी वजह से वो जेल में। एंड लेटर ही बिकेम ऑथर कि उन्होंने एक बुक लिखा है द लाइफ आई चोज। राइट। सो ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस का ये बड़ा एग्जाम्पल है अमीर बराका। तो लाइफ चेंजेस। और अगर मैं आपको मेरा एक लाइफ एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूंगा, आई विल नॉट से केस स्टडी, बट ये बहुत जानना जरूरी होता है कि जैसे कि एक बच्चा था, एक टीचर ने उसको डांट दिया था, उसको मारा नहीं था, उसको डांट दिया था बिकॉज वो कुछ गंदी वल्गर मस्ती कर रहा था। अभी ये बच्चे का दिमाग ना खुराफियत दिमाग था, कुछ तो अलग दिमाग था कि अभी ये टीचर को मुझे सबक सिखाना है। अभी बच्चे ने क्या किया, अपना जेब फाड़ दिया, थोड़ा सा खरोच कर दिया, बाल बिगाड़ दिए और घर पे जाके सब कुछ हमारे वहाँ सीसीटीवी में रिकॉर्ड था। जैसे घर पे जाके मम्मी को बोला कि मुझे टीचर ने मारा, ये वो, मम्मी गुस्से में आ गई। मम्मी इतनी गुस्से में आ गई, इतनी तिल मिला गई, मेरे क्लास पे आके मेरा कॉलर पकड़ने लगी, तू है कौन मेरे बच्चे को छूने वाला। लैंग्वेज वाज तू था, मैं तेरा एफआईआर कर दूंगी, ये वो, और बहुत सारी गंदी लैंग्वेज भी यूज कर दी। तो शी वॉज एक्सट्रीमली इनटू एंगर। नमिता जी, यू विल नॉट बिलीव, जब वो लेडी ने मेरा कॉलर पकड़ा था, मुझे फोन आ रहा है उसके फादर का, उनकी मम्मी का नाम था, आई विल नॉट यूज द नेम, और लेट्स से उनकी मम्मी का नाम चंचल था। उनकी वो फादर का फोन आया कि सर चंचल आई है क्या? हाँ सर आई है। सर वो बकवास कर रही है, कुछ करेगी नहीं, आप छोड़ दो, आप जाने दो, आपने जो किया अच्छा किया, बच्चे मारने से सुधर। तो मुझे बताइए यहाँ कौन सही है, फादर सही है कि मदर सही? मदर बोल रही है तूने मेरे बच्चे को छुआ कैसे, और फादर बोलते हैं सर आप छोड़ दो, मैं संभालूंगा, आपने जो किया वो सही किया। So if you try to understand the psychology of mother, जब मदर छोटी थी, जब मदर 14 या 15 साल की रही रहेंगी, तब उनको बहुत मारा या उनको बहुत फिजिकली अब्यूज किया जा रहा होगा, तो उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक डिसीजन ले लिया कि मैं मेरे बच्चे को छूंगी नहीं। जब मेरे बच्चे को समझाना रहेगा तो मैं उसको जबान की लैंग्वेज यूज करूंगी, उसको छूंगी नहीं, टच नहीं करूँ। तो जब उनके बच्चे को मारा गया, उनको पता चला कि हाय मेरे बच्चे को मारा गया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। और वो गुस्सा जो था, वो लेडी एक्चुअली ऐसी नहीं थी नमिता जी, शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बट
वो 15-14 साल 20 साल पुराना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया और वो गुस्से में मेरे पास आ गई। अभी हम बात करते हैं फादर का। फादर मान लो एक स्पॉइल ब्रैट रहेंगे, बिगड़े हुए बाप के बच्चे, बहुत मस्ती करते थे, हमेशा पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, पर एक दिन ये बच्चे ने कुछ बड़ी मस्ती कर दी जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता और उनके पिताजी ने उनको बहुत मारा। अगले दिन से सुधर गए। तो वो 15 साल के बच्चे के दिमाग में फिट हो गया कि मैं तो कितना बिगड़ा हुआ था, पर मार खाने के बाद सुधर गया। तो जैसे उनके बच्चे को मारा गया, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया कि बच्चे मारे बिना नहीं सुधर। तो सी दिस इज हाउ टू पर्सनालिटीज आर। मदर सोचती है तुमने मेरे बच्चे को छुआ कैसे, और फादर सोचते हैं कि बच्चे मारे बिना सुधरते नहीं। सो दिस इज हाउ द हैंडराइटिंग स्टडीज हेल्प्स यू टू एक्चुअली डेवलप द चाइल्ड एज वेल। एक पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेंज की जा सकती है। वेरी वेल सेड नीरव। समथिंग अबाउट केस स्टडी। थैंक यू। अभी आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक जैसे यूएस का ये जो सिचुएशन थी, एक जो केस स्टडी जो आपने बताई यूएस में, तो उस इंसान ने वो क्रिमिनल एक्टिविटी की बिकॉज ही वाज हैविंग अ हेल्थ कंडीशन ऑफ डिसलेक्सिया। थ्रू ग्राफोलॉजी हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी पता चलता है। यस, आपने अगर ये मूवी देखा रहेगा तारे जमीन पर, राइट, अपना आमिर खान का, तो उसमें हमने देखा रहेगा वो बच्चे को डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया होने की वजह से ना सब आपको अवॉइड करते हैं, सब आपको चिढ़ाते हैं, सब आपको इग्नोर करते हैं, तो आपके अंदर ये फीलिंग आ जाता है कि ये दुनिया मेरा है ही नहीं, जिसकी वजह से मे बी क्रिमिनल टेंडेंसी स्टार्टेड। तो यस, थ्रू हेल्थ इन हमारे ग्राफोलॉजी में हम जोन्स बोलते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। वो जोन्स के थ्रू हमें पता चल सकता है कि आपके बॉडी में क्या तकलीफ है। जैसे कि मान लो आप HLTDK लिखने के लिए अपनी पेन ऊपर लेके जाते हैं, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अपर जोन हैंडराइटिंग। मतलब वो आपके दिमाग, आपकी अपर बॉडी के बारे में बताता है। अच्छा, ओके, व्हेन यू टेक योर पेन अप, जब भी आप अपना पेन ऊपर लेके जाते हो, दैट इज अपर जोन हैंडराइटिंग। किसी को माइग्रेन है, किसी को सिर का प्रॉब्लम है, किसी को तो सुनने में तकलीफ है, किसी को बालों की तकलीफ है, ओके, एलोपेशिया जिसको हम बोलते हैं। व्हेन जब आप अपनी पेन ना ही ऊपर ना ही नीचे, जैसे कि AOUXW, तो अपना पेन ना ही ऊपर ना ही नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल जोन लेटर। तो गले से लेके नेवल तक इज योर मिडिल जोन लेटर। तो अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज दैट इज डायबिटीज, लीवर, ये सब इसमें से पता चल सकता है। और जब आप अपनी पेन नीचे लेके जाते हो, GJY कर्सिव Z, तो आपको लोअर बॉडी के प्रॉब्लम पता चल सकते हैं। जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, किसी को पैरों में दर्द है, स्पोर्ट्समैन है, एडवेंचरिस्ट है, ये सब आपको लोअर जोन से पता चलता है। जैसे कि मान लो अगर आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो आपका वाई बहुत बड़ा होगा। वाई मतलब आपका लोअर बॉडी, लोअर बॉडी ज्यादा यूज होने की वजह से आपका वाई बड़ा हो गया। ओके, so you can come to know your health problems as well, but it is always recommended, suggested कि इसका जो आपका एलोपैथिक मेडिसिन को स्टॉप कभी भी करना नहीं रहता है, because Agree. it is something additional therapy. It is not a treatment, it's a therapy. वेरी वेल सेड नीरव। हमने जब फर्स्ट टाइम जब बात की थी, लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन वी कनेक्टेड ओवर फोन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आल्सो स्पोक अबाउट माइंड रीडिंग एंड ऑरा, या तो एनर्जी रीडिंग हम जो कहते हैं। कैन यू प्लीज टॉक एनीथिंग ब्रीफ अबाउट इट? Yes, absolutely, absolutely. थोड़ा सा अगर डिटेल में कहाँ हो जाए तो जस्ट स्टॉप मी, बिकॉज मैं हमेशा चाहूंगा कि सामने वाले को आधा नॉलेज नहीं देना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज देना चाहिए। Agree. तो नमिता जी, इसमें मैं थोड़ा साइंस का हेल्प लेना चाहूंगा। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं हमारा जो यूनिवर्स है ये बना हुआ है एटम्स का, जिसको हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं। हमारे बॉडी बनी हुई है सेल्स की, तो सेल्स भी कहाँ ना कहाँ बने हुए एटम्स के, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। तो क्या होता है नमिता जी, जब हम लोग भागते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, तो हमारा बॉडी एनर्जी लिबरेट करता है, राइट, स्वेट के फॉर्म में बॉडी गर्म हो जाता है। वैसे ही हमारा बॉडी बना हुआ है एटम्स। हमारे बॉडी बने एटम्स बने हुए इलेक्ट्रॉन्स के, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये एटम्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, प्रोटॉन्स के आसपास घूमते रहते हैं। तो जब ये घूमते हैं, तो जैसे हमारा बॉडी एनर्जी लिबरेट करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एनर्जी लिबरेट करता है। तो ये एनर्जी जो लिबरेट करता है, ये डिपेंड करता है आपके सोच पे। मान लो आप बहुत खुश हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन
रोटेट और रिवॉल्व हो रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करे। अगर आप नाखुश हो, गुस्से में हो, जेलस हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी लिबरेट करे। सो आपको एक एहसास होता रहेगा नमिता जी, जैसे मान लो आप 3rd फ्लोर पे रहते हो और आपकी मम्मी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रही है, तो आपको एक एहसास हो जाता है मम्मी आ रही है। राइट। या मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई हो, तो आप उनको याद करते हो और उनका फोन आता है, तो आप बोलते हैं अरे मैं तुझे याद कर रही थी, 100 साल की हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं टेलोपैथी। What is this telepathy? What is this telepathy? Telepathy is what basically, मान लो मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ, तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वही एनर्जी लिबरेट करना शुरू करे। और जब एक ग्लास पानी से भर जाएगा तो क्या होगा, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पूरा बॉडी वो एनर्जी से भर जाएगा, वो एनर्जी लिबरेट होना शुरू हो जाएगा और पूरे यूनिवर्स में वो एनर्जी चला जाएगा। और वो इंसान तक वो एनर्जी चला जाता है और वो इंसान आपको भी फील करना शुरू कर देता है, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। अभी ये चीज को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा विद माइंड रीडिंग। जैसे कि मान लो आपने जो रियल साधु संत देखे रहेंगे, रियल साधु संत, वो आपका माइंड रीड कर सकते हैं। आप एक बुक में पढ़ सकते हो, जो स्वामी योगानंद स्वामी ने बुक भी लिखा हुआ है, योगानंद स्वामी करके। तो इस बुक में बताया गया है, ये साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर मेड अप ऑफ एटम्स, आई एम मेड अप ऑफ एटम्स। अगर मैं मेडिटेशन की मदद से अगर ये पूरी एनर्जी, आपकी और मेरी एनर्जी किधर ना किधर इक्वल कर लूं, तो मैं आपके माइंड के अंदर एंटर हो सकता हूँ। तो जो बड़े बड़े साधु संत हुआ करते थे, ये लोग फ्यूचर देख सकते, बिकॉज जैसे कि ये वॉल्स है, राइट, ये वॉल्स है, दीज आर वॉल्स। तो ये वॉल्स किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए। ये एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसकी एनर्जी को मैंने समझ लिया और इसकी एनर्जी को मैं एडजस्ट करना शुरू कर दिया मेरे हिसाब से, तो ये वॉल को मैं हटा सकता हूँ। ये वॉल के पीछे क्या हो रहा है ये मैं देख। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत सालों की साधना, बहुत परिश्रम चाहिए रहता है, मेडिटेशन बहुत करना रहता है, जो रियल साधु संत कर पाते हैं। सो माइंड रीडिंग इज बेसिकली व्हाट, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी आईब्रो, आपकी व्रिंकल्स, आपकी नोज, आपके लिप्स, आपके चेहरा, उसके हिसाब से माइंड रीडिंग करते हैं, जो एक थियोरेटिकली स्टडीड है। बट यस, थ्रू माइंड रीडिंग, जैसे कि ग्राफोलॉजी में अगर मैं बात करूं, तो देयर आर सम फैक्टर्स। अगर हम माइंड रीडिंग इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू लेवलाइज, इक्वलाइज द एनर्जी इन योर एंड माई माइंड। आपके माइंड के अंदर मेरे माइंड की जो एनर्जी अगर मैं इक्वल कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपके माइंड को रीड कर सकता हूँ। तो अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, अगर आप बहुत ही ऑनेस्ट रहते हो अपने आप से, फॉर एग्जाम्पल आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। आप नाखुश हो जाएंगे, जेलस हो जाएंगे, तो आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। तो सही मायने में अगर आप बहुत सच्चे इंसान बन जाते हो, तो आप किसी का भी माइंड रीड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा रहेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को इजीली देख पाते हैं, बिकॉज वो मन के बहुत सच्चे होते हैं। और अगर ये बात मैं कभी एक्सटेंड करना चाहूंगा थोड़ा सा, आपने देखा रहेगा जो कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे जो कुछ लोगों के हाथ में आते नहीं इजीली। मान लो मम्मी ने आंटी को या मासी को या किसी को हाथ में दिया तो रोना शुरू कर दे, और जैसे ही मम्मी हाथ में ले लेगी वो चुप हो जाता। कभी आपने ऐसा सीन ऑब्जर्व किया रहेगा ट्रेन में या कभी कोई फंक्शन। तो जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली 2 साल से 3 साल से छोटे बच्चे, ये बच्चे ना ऑरा रीड कर सकते हैं, आपकी बॉडी की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी रीड कर सकते हैं। सो मान लो मैं जेलस फील कर रहा हूँ या मैं गुस्से में हूँ, तो मेरे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी, और जैसे ही बच्चे को मैं मेरे हाथ में लेता हूँ, उसको रीड हो जाता है कि इंसान में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बोल तो नहीं पाता पर वो रोना शुरू करता है। उसको जैसे इनसिक्योरिटी फील होती है, वो रोना शुरू करता है। जैसे ही मम्मी उसको लेगी, तो ऑब्वियसली मम्मी के साथ तो वो 9 महीने भी रहा है, उसके साथ खिला पिला भी, मम्मी के साथ वो सिक्योर फील करता है, चुप हो जाएगा। सो माइंड रीडिंग इज ऑल अबाउट योर ऑरा, your energy in your body, and the what way you think that really matters. So that's all about mind reading manifestation. Amazing, Nirav. So Nirav, before we actually log off, क्या आप एक स्पेशल मैसेज दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे ऑडियंस को? Yes, नमिता जी, मैं यहाँ सबको यही बोलना चाहूंगा कि what happens, छोटी सी चीज जब हमारे लाइफ के साथ होती है ना, तो हम
डायरेक्टली नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि मान लो रास्ते पे कोई मुझे टकरा गया, तो हम डायरेक्टली उसको बोलना शुरू कर देते हैं, अंधा है क्या, ये रास्ता क्या तेरे पिताजी का है क्या। तो मुझे यहाँ सबसे यही बोलना है कि हमारे सबकी लाइफ पॉजिटिव नेगेटिव चीजों से बनी हुई रहती है, सबकी लाइफ, फिर भले वो नरेंद्र मोदी हो, जो बाइडन हो, कोई भी हो, सबकी लाइफ पॉजिटिव नेगेटिव से ही बनी रहती है। तो सबसे पहले जब हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब जो हमारी मर्जी का नहीं है, जो हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है, ट्राई टू जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फॉर सम सेकेंड्स। जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे ये पर्सन ने टक्कर मारी, और जब हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर धीरे धीरे उसको समझना शुरू कर देंगे कि यार उसकी गलती थी, उसने जानबूझ के नहीं किया। तो जैसे हम लोग ये एक्सेप्ट मोड में आ जाएंगे, हमारा धीरे धीरे गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, और हमारी लाइफ में जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का एनर्जी यूनिवर्स हमें देगा। बट अगर हम हमेशा गुस्से में रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे, तो यूनिवर्स भी हमें क्यों देखेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं वॉलेट भूल गया और नीचे मैंने बाइक पे आके ठोका, शिट यार वॉलेट भूल गया, आपके बाइक पे मारने से वॉलेट चल के नहीं आएगा। पहले आप एक्सेप्ट कर लो वॉलेट भूल गया, अपनी मम्मी को, वाइफ को फोन करो कि भाई जरा लिफ्ट से भेज देना, तो ऑटो वो आ जाए। बट अगर आप बाइक को ठोके, आपको भी लगेगा, बाइक को भी नुकसान हो जाए। सो एक्सेप्ट व्हाट द सिचुएशन इज। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने पहले बोला, नीरव जब तेरे साथ होगा तो पता चलेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप सिर्फ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए फॉर सम सेकेंड्स, एंड देन यू विल सी यूनिवर्स विल हेल्प यू, whichever religion you belong to, that God will help you to come out of each and every problem, and finally everyone can lead happy, healthy, wealthy life. Thanks a lot for sharing such a special and sweet message to my viewers. It's a pleasure to connect with you. Thank you नमिता जी, thank you. And you are very very humble कि आपने मुझे opportunity दिया. Thank you so much नमिता जी, thank you so much. Stay blessed. So take care, Neerav. Thank you. Speak to you soon. Yes, thank you so much. We have an exciting offer for you and you are all gonna love it. Get your free handwriting analysis done from the expert. और free का मतलब है जो first 25 submissions होंगे उनके लिए। उसके बाद अगर आपको आपका हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाना है, so you can still do it at a very basic price of 20 rupees. आपको बस कुछ चीजों का फॉलो करना है और उनकी सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको दे दूंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप, ये एक लिमिटेड एंड एक्साइटिंग ऑफर है। डू गो अहेड एंड अवेल इट।